Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in this lecture, we'll discuss about the type of soil erosion. तो ये एक सॉइल इरोजन की इस समय सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, आप उस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। रेनफेड एग्रीकल्चर में पूरे उसमें लेक्चर्स अपलोड मैं कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर इन सीरीज, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस सॉइल इरोजन। तो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, एजेंट डिस्कस किए थे, प्रोसेस डिस्कस किया था। टाइप आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर टू एजेंट फॉर सॉइल इरोजन, दैट इज रेनफॉल, वाटर and wind. So based on these two agents, there are mainly two type of erosion: water erosion and wind erosion. But there is third category of wave erosion also. So this is very short lecture but very important. इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा लेक्चर है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एजेंट कॉजिंग एजेंट, erosion causing agent based on these. First one is water erosion. So this erosion is caused by runoff water. So in those areas where rainfall is high, rainfall is more, then this erosion occur. So rainfall is very important for such type of erosion. So in those areas where rainfall intensity is high, duration is more, particularly in humid area, semi-humid area and humid area, sub-humid area, rainfall is more and it causes soil erosion. So it is generally asked in which area water erosion is more. So those areas where rainfall is more, and this erosion is due to runoff, surface runoff. So surface runoff volume decide the erosion. If runoff volume is more, definitely erosion will be high. तो वहाँ रेनफॉल से कितना इरोजन हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि वहां कितना वाटर इरोजन है, सॉइल कितनी इरोड हो रही है। अगर रन ऑफ वॉल्यूम इज लेस, देन सॉइल इरोजन विल बी लेस. सो इन्फिल्ट्रेशन, percolation and water holding capacity of soil, these parameters are very important which decide the water erosion. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम सॉइल जो लॉस होता है इस वाटर इरोजन से ही होता है। तो सॉइल इरोजन इज मेनली वाई water erosion and it is linked with the rainfall amount and ultimately with runoff quantity. Another agent is wind, and wind cause the erosion. It detaches the soil particle. As we have discussed, the erosion is detachment, then transportation and then deposition. So wind also cause, heavy wind, strong wind, detach the particles and then transported the soil particles and then deposit another place. So such type of erosion is known as wind erosion, and this wind erosion occur mainly in arid and semi-arid area, and this water erosion is mainly in humid and sub-humid area. It is not like that in arid and semi-arid water erosion is not there. It is not like that. More chances, बिकॉज भाई वाटर इरोजन वहीं होगा जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी, जहाँ रन ऑफ ज़्यादा होगा। तो ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, उस कारण से रन ऑफ के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया द क्रॉप इज ग्रोन फॉर ओनली 2 and 3 months एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सॉइल रिमेन बेयर, कोई वेजिटेशन नहीं रहता है। तो वहाँ जब वेजिटेशन रहता है तो एयर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है सॉइल पे और इरोजन चांसेस ज़्यादा है wind erosion के। So it is not like that the water erosion is not in arid and semi arid area. ऐसा नहीं है कि water erosion नहीं होगा arid semi arid में और wind erosion नहीं होगा humid semi humid में। सभी एरिया में सभी तरह के इरोजन होते हैं, बट जो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है वहाँ बहुत चांसेस है विंड इरोजन होने का, क्योंकि वहाँ रेनफॉल क्वांटिटी बहुत कम है, ड्यूरेशन बहुत कम रहती है। दैट्स वाई देयर आर लेस चांसेस ऑफ रन ऑफ एंड वाटर इरोजन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस एरिया में इरोजन ज्यादा होता है। देन वेव इरोजन। वेव इरोजन इज एक्चुअली कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर प्लस एयर, वेयर वाटर प्लस विंड इन दोज एरिया वेयर वाटर एंड विंड both cause erosion is termed as wave erosion. So it is the combined action of water and wind. तो जहां दोनों ही का कंबाइंड एक्शन सिग्निफिकेंटली हो रहा हो उसको हम बोलते हैं वेव इरोजन। तब ये वेव इरोजन किन एरिया में होगा? देखिए, अगर कोई रिवर है
और रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, देन दिस वाटर कैन स्ट्राइक द बैंक। तो ये जो है वाटर जो है नदी के किनारों को काटेगा। इसी तरह से समुद्र का पानी है वो उसके शोर हैं, सी शोर है, उनको काटेगा। तो सैंड का डिपोजिशन होगा, इधर सैंड का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ वाटर भी है, हवाएं भी चल रही हैं, वाटर भी है। तो नदियों किनारे का पानी या कोई कैनाल जा रही है उसका पानी उनके सिरों को काटेगा, उनके तटों को काटेगा, और ये जो है स्प्रेडिंग इस तरह से होती जाएगी और इस सॉइल इरोड होती जाएगी। जो सैंड आ रही है रिवर के साथ वो उसके दोनों तरफ डिपॉजिट होने लगेगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई सी है और यहाँ पे कोई जो वेव्स, सी वेव्स आ रही हैं वो इस लैंड एरिया को काटेंगी। तो उसमें वेव्स का भी रोल है। विंड वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विंड आती है वही बहुत तेजी से आएगी, उसको काटेगी। इस तरह से जो वेव्स आ रही हैं, वाटर वेव्स आ रही हैं, वो भी इसको काटेंगी। तो ये एरिया बढ़ता जाएगा और सैंड फैलती जाएगी। तो ये जो एरिया जहाँ सैंड फैल रही है देन बिकम अनप्रोडक्टिव, क्योंकि वहाँ सैंड फैल गई है। सो ऐसे रीजन में वेव इरोजन होगा जहाँ पानी जो है वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर और स्ट्रीम्स और कैनाल, और जो समुद्र के किनारे हैं, सी शोर्स हैं, वहाँ पे जो है बीच हैं, वहाँ पे जो है वेव इरोजन होगा। सो दिस इज द वेव इरोजन, इट इज द कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर प्लस विंड। तो दिस क्वेश्चन में भी आज की समुद्र में जो इरोजन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, विंड, वाटर और कंबाइंड। सो दिस इज कंबाइंड वेव इरोजन। सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट द टाइप ऑफ इरोजन। लेकिन इरोजन से हाउ मच सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। तो विंड इरोजन से कितनी सॉइल लॉस होगा और वाटर इरोजन से कितना सॉइल लॉस होगा, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। बट जो देखिए सॉइल का जो लॉस हो रहा है, मान लीजिए ये 1 हेक्टर एरिया है, सो इट इज 1 हेक्टर एरिया and wind action is there or wind is there, rainfall is there and soil is lost. तो in natural field always there is soil erosion. तो देखिए soil erosion is a natural process, ये होता ही है। इसकी क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लेकिन सॉइल इरोजन होगा, ये नेचुरल कंडीशन है। तो अब देखिए रेनफॉल से हो रहा है और विंड से हो रहा है। सॉइल इज डिटैच एंड ट्रांसपोर्टेड, सो इट इज रिमूव्ड, सॉइल इज रिमूव्ड। Suppose 1 millimeter depth of soil is removed. ये 1 hectare area is there and uniformly, suppose uniformly इस पूरे एरिया से 1 millimeter जो soil थी depth वो remove हो गई है with the run of water and blowing wind। तो हवा के साथ, पानी के साथ 1 millimeter soil का लॉस हो गया है फील्ड से। तो हम पता कर सकते हैं कितना kg, how much kg soil is eroded, कितनी इरोड हो गई है या कितना रिमूव हो गई है। हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो इसकी मान लीजिए बल्क डेंसिटी मान लीजिए 1.3 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इट इज इन जनरल एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। और इसको ओल्ड में हम इसको 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ग्राम पर सीसी इज ओल्ड यूनिट एंड मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इज न्यू यूनिट। तो दोनों इक्वल होती हैं। 1 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हमको बल्क डेंसिटी पता है, वी नो द बल्क डेंसिटी, देन वी कैन क्वांटिफाई हाउ मच सॉइल इज इरोडेड इफ 1 मिलीमीटर सॉइल इज रिमूव्ड। कि खेत से अगर 1 मिलीमीटर, हालांकि 1 मिलीमीटर बहुत कम होता है, उससे अगर सॉइल रिमूव हो रही है इतनी, तो कितना केजी सॉइल रिमूव हुआ है। तो फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू एरिया of field into depth of soil eroded. So here we considered area 1 hectare and depth 1 millimeter. कि 1 हेक्टर एरिया से 1 मिलीमीटर सॉइल इरोड हो रही है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। देन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑल द यूनिट्स विल बी सेम, उनका सेम होना जरूरी है, तो उसको सेम यूनिट में करना पड़ेगा, हेक्टर को मिलीमीटर को। सेम यूनिट हम मीटर में ले लेते हैं। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर and 1 millimeter it is converted into meter 1/1000 meter। तो 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें मिलीमीटर को मीटर में। नाउ इट इज 10 क्यूबिक मीटर। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड या इरोडेड इज इक्वल टू 10 cubic meter। Now look what is the bulk density?
World density is 1.3 megagram per cubic meter. What does mean? It means the weight of 1 cubic meter soil. 1 cubic meter soil मतलब कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इस तरह कोई हम ब्लॉक लें और उसका जो वेट है ये है 1 क्यूबिक मीटर. कोई चीज 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर विथ एंड 1 मीटर हाइट, that is 1 cubic. Okay, so bulk density is 1.3 megagram. So here weight of 1 cubic meter soil is equal to 1.3 megagram. Now the soil eroded is 10 cubic meter. So weight of 10 cubic meter soil is equal to 1.3 into 10 megagram. It means it is 13 megagram. मेगाग्राम तो इसको हम कर सकते हैं 13 into 10 to power 6 ग्राम. And 1 megagram is equal to 10 to power 6. मेगा 10 to power 6 को रिप्रेजेंट करता है. तो इट मीन्स 13 into 10 to power 3 kg, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो इसका मतलब ये हो गया 13123 kg soil. तो दिस kg soil is eroded. या 1 megagram is equal to 1 ton. तो 1 megagram is equal to 1 ton. तो soil eroded is 13 megagram. तो it means it is 13 ton. 13 megagram. तो 13 ton soil is eroded. तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो 1 मिलीमीटर सॉइल, देखिए 1 मिलीमीटर बहुत ही कम है, अगर इतना सॉइल इरोड हो रही है फील्ड से तो कितनी मिट्टी हमारे खेत से बह के चली गई. दैट क्वांटिटी इज 13 मेगाग्राम. इट मींस 13 टन. तो 13 टन देखिए 1 मिलीमीटर में जा रहे हैं, तो अगर 2 मिलीमीटर होगी तो 26 टन, अगर 3 मिलीमीटर गई तो 39 टन. तो सोचिए कितनी सॉइल जो है इरोड हो रही है और जिसको हम इग्नोर करते हैं. और इसी सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, फर्टिलिटी भी जो है ऊपर की टॉप सॉइल में है. तो इसका मतलब सारा फर्टिलिटी, सारा न्यूट्रिएंट, सारा ऑर्गेनिक कार्बन क्या कर रहा है, लूज हम कर रहे हैं एवरी ईयर, और इसको हम इग्नोर कर रहे हैं. तो उसके लिए हम बहुत हमारे मेजर्स होते हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. आज हमने ये डिस्कस किया कि टाइप ऑफ इरोजन, वाटर इरोजन, विंड इरोजन एंड वेव इरोजन, एंड हाउ मच सॉइल इज लॉस्ट इन 1 मिलीमीटर डेप्थ इज इरोडेड. तो ये आप इस न्यूमेरिकल को अगर समझ रहे होंगे, इस कैलकुलेशन को, देन यू कैन एज्यूम हाउ मच सॉइल इज इरोडेड एवरी ईयर व्हाइल द डेप्थ इज ओनली 1 मिलीमीटर. तो अगर देखिए पूरी लेयर अगर सॉइल की इरोड कर रही है तो कितनी हमारी सॉइल जो है लॉस हो जा रही है एवरी ईयर फ्रॉम द फील्ड. तो ये एक कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बताई. एंड हेयर बल्क डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिसका अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब सॉइल लॉस भी क्या होगा, वहाँ ज़्यादा होगा. तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.